Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. Previously in my videos I mentioned there are a lot of uses of wood. So in English language. So today we are going to learn it. Wood is basically a modal auxiliary verb, which means it modifies other verbs to create different effects, right? It's simple a modal auxiliary verb, right? Would is used to express polite request. We use would for polite request, invitations or offers when we offer or invite somebody. Repeated actions in the past will detail about it. Hypothetical situation that are imaginary that we feel that can be happened, right? Wishes, talk about preferences when we give our own opinions in conditional sentences like zero, first, second or third conditionals, and then narrations like डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का इस्तेमाल होता है. इन सबको वी गोना स्टडी slowly gradually because there is a lot to cover. I'll mostly give you examples so you can understand how it works actually. So first of all, we have the first one, make polite request. How do we use would when we make polite request? For example, it is always a good idea to ask things politely in English, but when we sound demanding, right? For example, if you say close the window to someone, close the window please, हमने प्लीज़ भी इस्तेमाल कर दिया, किसी को हम बोल रहे हैं क्लोज द विंडो प्लीज़, तो it also sound demanding. It's not a polite expression to ask somebody to do something, right? You might in reply you might get an answer के you are not a boss of me, close it yourself, खुद बंद करो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ. This is how the expression in Urdu as well. But ये demanding expressions become polite one by the use of would. For example, instead of using please, you have to use would to make the expressions more polite in English language. For example, अब आप इसको इस तरह से कहोगे, would you close the window please? इसमें please भी आ गया, लेकिन would makes it more polite than without would, right? तो आपको शायद रिप्लाई में ये आंसर आए, sure I would be happy, right? So this is the polite expressions, polite request. Number one. The second use is, I hope this is understood. The second use is to make invitations or offers. हम जब किसी को इनवाइट करते हैं या किसी चीज़ की ऑफ़र देते हैं किसी को, तो भी वी यूज़ वुड. फॉर एग्जाम्पल, let's say you want to invite someone to come to your home for tea, right? Since you are inviting them, not ordering them obviously to come, so you will want to say it politely, right? Again, politeness. So we use would to make the expression, make the offer, make the invitation more polite, right? For example, just say, would you like to come over for tea tomorrow? Or would she like to watch a movie? Would you eat popcorns? Right? For polite invitations and offers. Then the third use is repeated actions in the past. इन द पास्ट हमारी कुछ रिपीटेड एक्शंस थे जो हम शायद रोज़ाना करते हों, हफ्ते में 2 बार करते हों, महीने में 2 बार करते हों, राइट? या साल में 2 बार करते थे, राइट? इस तरीके से रिपीटेड एक्शंस. लेकिन अब हम वो नहीं करते. हमारी पास्ट में आदत थी. जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड स्टे विद माय आंटी एवरी समर, राइट? आई वुड स्टे. तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड ऑब्वियसली, सो आई वुड स्टे एक्सप्रेशन दे रहा है. ये वाला जो एक्शन है, ये वाला जो मॉडल वर्ब है, ये हमें बता रहा है कि ये चीज़ मैं कब करती थी, पास्ट में, रिपीटेडली, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है एवरी समर, राइट? देन नेक्स्ट, आई वुड स्विम अ लॉट when I was younger. Again, when I was younger, I would swim a lot. Now I no more swim. अच्छा, ऐसे एक्शंस
जो रिपीटेडली आप पास में कर रहे हो उसके लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं, आई टोल्ड यू, बट हम यूज़ टू भी इस्तेमाल करते हैं, राइट. वी ऑल्सो यूज़ टू एंड वी ऑल्सो यूज़ वुड. नाउ देयर इज़ एक्सेप्शन कि यूज़ टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम स्टेट वर्ब्स की बात करें. अब ये स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब हैज़ टू काइंड्स के लिए. फॉर एग्जांपल, एक होते हैं स्टेटिव और दूसरे होते हैं डायनामिक. ठीक है, एक होता है स्टेटिव, दूसरे होते हैं डायनामिक. ये दो काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं. स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली या तो हमें किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, या तो उसका परसेप्शन बताते हैं, या तो उसकी कंडीशन बताते हैं. ठीक है. और डायनामिक कहते हैं एक्शन वर्ब्स को. बेसिकली जितने भी हमारे एक्शन वर्ब्स हैं वो हमारे डायनामिक वर्ब्स हैं, जैसे ईट, जैसे राइट. ठीक है. अब इनको समझना है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है. स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली, मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा ओपनली समझाऊं तो वी कैन से, इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए वी कैन से, जो हमारे इमोशंस से ताल्लुक़ रखते हैं वर्ब्स, जो हमारे इमोशंस शो करते हैं. इमोशंस की कोई फिज़िकल स्टेट नहीं होती. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशन कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लव. इफ़ यू लव समवन, तो लव जो है वो दिखाई नहीं देता है. इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग, राइट. तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो स्टेटिव होते हैं. जैसे लव हो गया, नीड हो गया, वांट हो गया, विश हो गया. ठीक है, जितने मुझे याद आ रहे हैं आई एम राइटिंग. दूसरा, ऐसे वर्ब्स जो हमारा सेंस डिफाइन करते हैं, ऐसे भी वर्ब्स स्टेटिव होते हैं जो हमारा सेंस डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल सी हो गया, देखना, राइट. जैसे हेयर हो गया, सुनना. जैसे स्मेल हो गया, जैसे फील हो गया, राइट. इस तरीके से टेस्ट भी इसमें आ सकता है, टेस्ट भी आ सकता है. अब उसके अलावा फॉर एग्जांपल ओपिनियंस के हिसाब से जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे परसेप्शन. फॉर एग्जांपल ओपिनियंस में आ गया जैसे नो, जानना. ठीक है. अंडरस्टैंड, दिस इज़ ऑल्सो स्टेटिव वर्ब. अंडरस्टैंड आ गया. फिर इसमें आ गया अग्री, इमेजिन. आई कैन प्रोवाइड यू लिस्ट आफ्टरवर्ड्स. देन चौथी, पोजेशन. फॉर एग्जांपल ऐसे वर्ड्स जो पोजेशंस शो करें वो भी स्टेटिव होते हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल कोई अपीयरेंस नहीं होती है. फिज़िकली हम उनको नहीं कर रहे होते हैं. जैसे आई हैव अ कैमरा, फॉर एग्जांपल हैव. फॉर एग्जांपल ऑन, आई ऑन अ बैंगलो. फॉर एग्जांपल शी बिलोंग्स टू हर बिकॉज शी इज़ अ डॉटर. ठीक है. इस तरीके से बहुत सारे और भी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं. अब जब ये स्टेटिव वर्ब्स आ जाएंगे तब हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे यूज़ टू का, या हम करेंगे ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाऊँ, आई यूज्ड टू फील लोनली इन चाइल्डहुड. फॉर एग्जांपल इन चाइल्डहुड, यहाँ पे हम वुड नहीं यूज़ करेंगे. आई वुड फील लवली इन चाइल्डहुड, लोनली इन चाइल्डहुड, सॉरी. तो इस यहाँ पे वुड नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़ टू का एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है. या आप इसको सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं. जैसे आई फील का सेकेंड फॉर्म लगा दें यूज़ टू की जगह पे, सॉरी, FELT, फेल्ट लोनली इन चाइल्डहुड. ठीक है. आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ. दिस वाज ऑल. देन इसके अलावा द फोर्थ यूजेज फॉर, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जांपल पास्ट बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर. पास्ट बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल करंटली प्रेजेंट टाइम में हम अगर ऐसे बिलीव्स की बात करें तो हम विल यूज़ करेंगे. प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल
वुड कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम फॉर एग्जांपल बचपन में अपना फ्यूचर सोच रहे हो, बचपन में मैं क्या बनना चाहती थी, मैंने क्या सोचा था कि मैं बड़ी होके क्या करूँगी, वो बचपन की बात है। तो बचपन में मैं जो फ्यूचर के बारे में सोचती थी, वो मेरा बचपन जो है वो मेरा पास्ट है। तो बचपन में जो मैं फ्यूचर के बारे में सोचती थी वो एक्सप्रेस करने के लिए वी विल यूज़ वुड। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जब या फ्यूचर टाइम की बात करेंगे तो उसकी जगह पे विल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अली विल बी इन हिज ऑफिस, ये प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है, बिलीफ है। वी विल बी लेट, ये फ्यूचर आ गया, राइट। तो सिंपली अब हम जब छोटे बच्चे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट बिलीफ अबाउट फ्यूचर, पास्ट बिलीफ कि मैं बचपन में क्या सोचती थी या पास्ट में मेरी क्या राय थी फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में या किसी और के फ्यूचर के बारे में। When I was a child, I thought I would be a good teacher. जब मैं बच्ची थी तो मैं सोचा करती थी कि मैं अच्छी टीचर बनूंगी। Are you getting me? तो ये मैं पास्ट में सोचती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं वाकई बन जाऊंगी। ओके, फॉर एग्जांपल पास्ट मेरा 2000 ले लेते हैं, 2000 में मैं शायद 6, 7 या 8, 9 साल की होंगी। When I was a child, I thought, ये मैंने 2000 में सोचा था। 2000 में मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा था जो 2017 हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई वुड बी अ गुड टीचर। 2017 में ही आई बिकेम अ लेक्चरर, आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ लेक्चरर। सो ये पास्ट की फीलिंग है जो मैंने फ्यूचर के बारे में सोची थी, राइट। तो अब मैं बताऊंगी कि मैंने अपने पास्ट में ये सोचा था। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम जो है वो वुड यूज़ करके कहते हैं। Now the fifth one, in hypothetical situation we use would. What is mean by hypothetical? Hypothetical basically a situation where you talk or give your opinion to someone, but you are yourself not sure about that कि वैसा होगा भी या नहीं, right? तो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कहने के लिए, कहने के टाइम पे हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस स्टार्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन फ्रेजेस हैं आई वुड थिंक कह के हम बात शुरू करते हैं, आई वुड इमेजिन कह के हम बात शुरू करते हैं, आई वुड गेस कह के हम बात शुरू करते हैं। तो ये हम हाइपोथेसिस शो करते हैं कि मैं जो आगे कहने वाली हूँ शायद मुझे उस पर फुल श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशंस मैंने कुछ रखी हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से इसको समझ में आ सके। शुड वी गो अहेड एंड अटेंड द पार्टी। अब दो बंदे इंतज़ार कर रहे हैं तीसरे बंदे का। एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है कि शुड वी गो अहेड एंड अटेंड द पार्टी, क्या हमें पार्टी अटेंड करनी चाहिए। तो वो दूसरा बंदा कह रहा है, हाइपोथेटिकली कह रहा है कि आई वुड थिंक वी नीड टू वेट फॉर हिम। उसे लगता है कि इंतज़ार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शी लुक्स रियली टायर्ड। अब ये एक और सिचुएशन है, वो बहुत थकी थकी दिख रही है। तो हम हाइपोथेटिकली ये इमेजिन कर सकते हैं कि आई वुड इमेजिन it has been exhausting to travel for 4 hours daily. For somebody who travel for 4 hours, he can understand. Third one, what do we do now? ऐसी situation में, for example, I would guess. Now it's up to you. You are going to complete the sentence and let me know कि what have you written in the comment section. Okay. So these are the 5 uses till so far we have learnt. So now the 6th one. We use would to express wishes. अच्छा, we use would as well as could. हम could का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन could बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन हम हमेशा यूजुअली तौर पे would इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विशेस एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मैं एग्जाम्पल लूँ, आई विश दे वुड स्टॉप डूइंग दैट। इफ़ समवन इज़ अनोइंग मी, तो आई माइट से I wish they would stop doing that. अब मैंने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया है, हम बहुत दफ़ा ये यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट वी डोंट एक्सपेक्ट टू कम ट्रू। अगेन हाइपोथेटिकल, आई मेड यू क्लियर अर्लियर, राइट। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। माई डॉटर विशेज शी कुड हैव चॉकलेट इन एवरी मील। शी लव्स चॉकलेट, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं उसको हर मील में चॉकलेट ही ऑफ़र करूँ। सो दिस इज़ वॉट टू एक्सप्रेस विशेस, हम हाइपोथेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। नाउ द लास्ट यूजेज, टू टॉक अबाउट प्रेफरेंसेस।
प्रेफरेंसेस का मतलब होता है जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र की जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें चॉइसेस दी जाती हैं कि ये या ये, तो उसको प्रेफरेंसेस कहते हैं. वहाँ पे भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हियर देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज़ वुड प्रेफर या वुड रादर, ठीक है, बट प्रेफर इज़ जनरली मोर फॉर्मल देन रादर. इन कैजुअल कन्वर्सेशन आपने सुना होगा कि रादर ज़्यादा यूज़ होता है प्रेफर से, लेकिन जो फॉर्मल है वो प्रेफर है. द फॉर्मल यूज इज़ प्रेफर. फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ऑफ़र दी जा रही है, वी हैव ईदर बिरयानी और स्पगेटी फॉर डिनर, ठीक है, तो हमें इनमें से चूज़ करना है. आई वुड, ये मैंने एक्सप्रेशन से एक रादर का बनाया है, एक्सप्रेशन एक रादर का बनाया है. आई वुड रादर हैव बिरयानी. यू हैव अ चॉइस, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन, ठीक है. ये कैजुअल यूज़ है, इट्स अ कैजुअल, इन कैजुअल टॉकिंग में, दोस्तों के साथ, फैमिली में, ठीक है. व्हाट वुड यू प्रेफर, बिरयानी और स्पैगेटी फॉर डिनर. अब ये बिल्कुल फॉर्मल है. इन अ फॉर्मल सेटिंग यू वुड यूज़ दिस वन, आई वुड प्रेफर स्पैगेटी, राइट. सो these were the uses of would. I hope all the expressions are clear to you all. Ab now conditionals. Conditionals, as I already said, ke zero, first, second, third, but these uses of would comes in second and third conditionals, ठीक है. Then reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ पे भी विल आता है दैट इज चेंज्ड इनटू वुड. इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आया तो दैट विल बी चेंज्ड इनटू वुड. व्हेन वी विल बी लर्निंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आई लेट यू नो दीज एक्सप्रेशंस. This was all about the use of would. I hope you have enjoyed the lesson and you have understood the usage. Thank you very much, all of you. Be kind and humble to everybody.